And now if you see, he says, of course, package is stored in upper outboard edge of the store should be secured by at least 2 lashings. So this is what I was saying. It's a very normal common thing that if there is a the extremity, the extreme logs जो हैं उनके both hands should be secured. So lashing ये नहीं है कि हम we go as per the या 3 meter या 1.5 meter, and if one end of the log is not secured, definitely there will be a problem. Rounded angle PC suitable material design should be used along the upper outboard edge of the store to bear stress. That is not required for these tree trunks what we are carrying. And timber deck cargo should be secured throughout its length by independent lashings spaced not more than 3 meter apart. अब वो कहता है कि if the timber deck cargo is stored over the hatches and higher. अब ये है cargo जो है, of course normally we are going to store above the hatches, तो हायर तो जाने वाला है. देन इट शुड बी इन एडिशन. पहले तो हमने सिर्फ हॉग वायर लगाई थी हाफ हाइट पे. अब वो कहता है कि अगर आपका कार्गो हैच कवर से ऊपर जाता है, देन इन एडिशन what you have to put is a system of athwart-ship lashings, hog lashings, joining each port and starboard pair of uprights near the top of the store. It is basically at other appropriate levels as appropriate. So normally hog lashing जो है we put it at half the height. And then log hashing के बाद when we complete the cargo, last में we are supposed to put this dual continuous wire, what we call the wiggle wire. तो ये आपकी requirement आ जाती है, and that is the best way. So हमने foot wires भी लगाई हैं, hog wire भी लगा दिया, and then wiggle wire which is like a shoelace dual continuous wire is passed from side to side over the cargo and held continuously through series of snatch blocks or other suitable device held in place by the foot wires. So ये हमने आपने देख लिया था, लिखने के लिए भी आपके पास wording है. So the dual continuous wire rope should be led to a winch or other tensioning device to facilitate further tightening. तो ये system इन ships पे रहेगा ही. So this is, you can see these hog wires. It can be 1, it can be 2, as you please, as the lashings or the lashing eyes are given on the uprights. If there are 2 of them given, if you feel you want to put 2, it's good enough. But even सर फुट वायर क्या होगा फिर सर? हाँ जी, आप फुट वायर बता रहे थे ना सर कल एक? क्या ये फुट वायर कैसे, या गो है? नहीं सर, आई एम आस्किंग वो किधर, मतलब वो किस लेंथ पे यूज होगी? यू आर सेइंग ना वी पुट द ऑन द शिप साइड एंड देन आफ्टर कंप्लीशन वी पुट ऑन द अदर साइड, लाइक उसको बंद कर देते हैं स्ट्रैप की तरह, जो आप बता रहे थे. आई एम कमिंग देयर. ये देखिए, नाउ इफ यू सी दिस, ये आपकी मेन डेक आ गई. इस मेन डेक पे ये आपकी आईज रहती हैं. यस सर. तो ये आपकी मेन डेक है. मेन डेक की आई से हम पहले से ही इसको लगा के नीचे रख देंगे, हीविंग लाइन से ऊपर पकड़ लेंगे. जैसे जैसे कार्गो, अब जब कार्गो खत्म हो गया, देन वी पुट दिस वायर यहाँ पे. तो ये तो एडिशनल है कि ठीक है, चेन भी हमने लगा दी, बीच में टर्न बकल लगा दिया, एंड ये जो फुट वायर आ रही है इस पर हमने स्नैच ब्लॉक लगाया. दूसरी फुट वायर आई, उस पर स्नैच ब्लॉक लगाया. तो ये स्नैच ब्लॉक देखिए, ये जो एक वायर इस तरह से जाएगी, दूसरी वायर दूसरी तरह से जाएगी. लाइक आई शो यू. Yes, if you see, this is a bird's eye view if you are looking from top. So आप इसका लूप भी बना सकते हो. आपने ये जो फुट वायर ली है, एक फुट वायर एक स्लिंग है, उसका एक एंड यहाँ पे लगा दिया, एक एंड यहाँ पे लगा दिया, ये लूप बन गया. इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे स्नैच ब्लॉक लगा देता हूँ. सिमिलरली अदर साइड, फ्रॉम द अदर साइड एक लूप बना दिया, यहाँ स्नैच ब्लॉक लगाया. अब ये देखिए वायर जो आपकी ये विगल वायर आ रही है विच इज़ गोइंग थ्रू दी स्नैच ब्लॉक्स. एक ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है. एंड मैं इसको टाइट करूँगा, एक एंड तो मैंने फास्ट में आके सर, या एक एंड तो मैंने यहाँ फास्ट कर दिया, एक यहाँ कर दिया. इसको मैं पुल करता हूँ, सो एंटायर लैशिंग जो है आपकी टाइटन हो जाएगी. सो ये स्केच आप इजीली एग्जाम में भी बना सकते हो, आंसर शीट पे, नॉट अ डिफिकल्ट वन. ये बाकी 3 डायमेंशनल वाले थोड़े से मुश्किल है. सो व्हाट आई सजेस्ट, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसमें आपका सारा कुछ दिख रहा है. आपको फुट वायर कहाँ है, हॉग वायर हाफ द हाइट पे, ये देखो बीच में से हॉग वायर गई. जब कार्गो यहाँ था तो हमने ये हॉग वायर दोनों अपराइट्स को ज्वाइन किया आपस में. इसमें कुछ नहीं लगाना, कोई टर्न बकल नहीं, जस्ट नॉर्मल वायर की लेंथ होती है उसको लगा दीजिए. कार्गो ने ऊपर से इसको प्रेस करना. वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखा रहा है. ये
if you see the fore and aft, if you are looking from the aft, then कार्गो के बीच में ये हॉग वायर आपको देखो स्लैक भी दिख रही है, बट कार्गो इज गोइंग टू प्रेस दिस. इसका पर्पस क्या है बेसिकली कि इफ देयर इज अ कार्गो का वेट इस इन अपराइट्स पे आएगा, स्टारबोर्ड साइड पे अपराइट्स पे आएगा व्हेन द शिप इज रोलिंग. तो इन अपराइट्स के ऊपर पूरा वेट डालने की बजाय थ्रू दिस हॉग वायर ये आपका वेट ट्रांसफर हो जाएगा, वेट ट्रांसफर इस पे हो जाएगा. ठीक अब है. मैं आई एम नॉट गोइंग वेरी हाई टेक्निकल, बट अगर आप जाइए देखिए इट इज अगेन लाइक अ कंटेनर्स. अब ये कार्गो मैंने स्टोर किया है, इसके ऊपर रैकिंग स्ट्रेसेस भी आएंगे, बेंडिंग मोमेंट भी आएगा आपके अपराइट्स के ऊपर, बिकॉज दिस कार्गो इज गोइंग टू प्रेस ऑन टू दिस अपराइट्स. तो यहाँ पे ये जो अपराइट्स की कंस्ट्रक्शन है उनकी स्पेसिफिकेशन है, दे ऑल्सो मेक श्योर, ये सारी उन्होंने नेवल आर्क ने कैलकुलेट किया है कि कितना कार्गो है, इसके ऊपर कितना वेट आएगा, जो भी स्ट्रेसेस हैं आप रैकिंग बेंडिंग मोमेंट सब कुछ वो कैलकुलेट करके आपको हमें दे देते हैं, और रादर शिप में या अपराइट्स को हमें दे देते हैं फिक्स करके कि इस साइज़ के होने चाहिए. बेसिकली दे आर थिक एच गर्डर्स होते हैं, आई गर्डर्स, आई बीम्स. सो एटलीस्ट आपके लिए एज अ चीफ ऑफिसर व्हेन यू आर डूइंग दिस लैशिंग, सो आप थोड़ा टेक्निकली आपका व्यू जो होगा वो काम करने वाले ठीक है, दूसरे हो तो ठीक है इसको आप लगा दीजिए. योर व्यू, योर लुकिंग अप इनटू द थिंग्स इज फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ यार इसकी स्ट्रेंथ, वायर की स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ, इतना लोड है. फर्स्ट थिंग इट कम्स टू माई माइंड, जब मैंने भी लोड किया था कि अरे कार्गो है ये तो प्रेशर डालेगा इसके ऊपर, तो ये कितना स्ट्रॉन्ग है. तो फिर पढ़ने में पता लगा ठीक है, दे हैव टेकन केयर, सारी कैलकुलेशन करके उन्होंने आपको अपराइट्स दिए हैं. तो सारे के सारे आएंगे, फोर्स तो डालेगा ये कार्गो इस तरफ, जैसे आपका नॉर्मल एक माउंटेन देख लीजिए, ऊपर से मिट्टी का प्रेशर तो रहता ही है. तो यहाँ पे भी वही है, बट इट इज़ टेकन वेल केयर. कैलकुलेशन भी आई थिंक इन्होंने दी है उसमें व्हाट वी कॉल द टिम्बर कोड में, बट नो नीड. हमें क्या चाहिए इस वक्त एग्जाम में आंसर लिखने के लिए कि ठीक है जी व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ फ्लैशिंग, सर दिस इज़ द वे. फर्स्ट थिंग एज वी कम अप, ये आपके हैच कवर हैं. इफ़ आई एम गोइंग टू लोड ओवर द हैच कवर्स देन आई विल पुट दिस हॉग वायर्स. हॉग वायर्स आपने लगा दी, आप वो ड्राइंग भी दिखा सकते हैं, ये स्केच भी बना सकते हैं. एंड दिस इज़ अगेन योर फुट वायर्स दिखाने के लिए फ्रॉम पोर्ट साइड एंड दूसरी साइड से दोनों से आके ये फुट वायर्स थ्रू द टर्न बकल, ये भी आपने लगा दी. वायर लैशिंग में भी लूप्ड ओवर द अपर मोस्ट ईयर, टर्न बकल्स आर फिटेड इन ईच लैशिंग. तो ये अगर आपने समझ लिया, दिस स्केच इज किसी भी स्केच में, ताकि आप अपने एग्जामिनर को आइडिया दे रहे हो स्पेसिंग, या इधर 1.5 और 3 मीटर की स्पेसिंग में लैशिंग में रखूँगा. So if he asks you question at any time, at any stage पे अगर कुछ भी पूछते हैं, आई थिंक यू कैन वेरी वेल आंसर कीजिए लैशिंग क्या है. इट इज़ सिंपल वे. प्रिकॉशंस आपने देख लिए पहले बिफोर वी कम एंड स्टार्ट लोडिंग ऑन डेक. अब ये कई बार सॉन टिम्बर है, इट इज़ कवर्ड विद पॉलीथीन, प्लास्टिक, टॉर्पलिन्स. फिर उसको करने के लिए उसने, ताकि आपका टॉर्पलिन जो है ये पॉलीथीन उड़े ना, सो वी कीप दिस डनेज ऑल्सो, फ्लैट डनेज रख दी जस्ट टू प्रेस इट डाउन, ताकि ऑफ कोर्स ओपन सी में तो देयर इज लॉट ऑफ विंड, तो उसकी जो कवरिंग्स हैं वो ऐसी की ऐसी बने रहे. तो इस कार्गो पे चलना तो वेरी इजी, इजंट इट. वी कैन इजीली वॉक फ्रॉम आफ्ट टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू आफ्ट. बट जो लॉग वाला कार्गो है उसमें मैंने आपको कहा था थोड़ा सा. हाँ जी सर इसको हॉग लैशिंग सर इसको क्यों बोलते हैं? हॉग लैशिंग बच्चे ये जो हाफ हाइट पे लगाते हैं, ये देखो आपका कार्गो अभी आधा लोड हुआ है, एंड देन वी स्टार्ट पुटिंग दिस हॉग वायर्स. हाफ हाइट पे आके वी जस्ट जॉइन दिस टू अपराइट्स विद अ वायर, जस्ट नॉर्मल वायर, कोई टर्न बकल नहीं, नॉर्मल लेंथ की होती है, थोड़ी लंबी भी हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इसके ऊपर मैंने कार्गो डालना है, और कार्गो तो यहाँ तक आना, टॉप तक. ओके तो सर हर कार्गो लोडिंग सर स्टेंशन हाइट पे डिपेंड करता होगा ना सर, या वो भी हम इंक्रीज कर सकते हैं? नहीं, इसको वायर को नॉर्मली आइज चाहिए ना, उन्होंने आइज वहीं पे वेल्ड की होती है. नहीं सर, वो अपराइट की बात कर रहे हैं सर. अपराइट सर, अपराइट. अपराइट्स को क्या करना है सर? इनकी स्टैंडर्ड हाइट रहती है, यस इतना है. यस दैट इज ऑल कैलकुलेटेड कि आपके कार्गो की हाइट कितनी होगी. सो नॉर्मली वी डोंट गो बियॉन्ड द अपराइट्स.
We don't load cargo beyond the uprights. ओके सर। सर ये जो हॉग वायर लगाते हैं हम, ये कुछ स्टैंडर्ड रेगुलेशन है कि हम कितने लेयर के कार्गो के बाद डालेंगे, ऐसा कुछ? आपके पास बता दिया। ये देखो आपने अपराइट लगाए, जहाँ पे अपराइट की आई आ जाएगी, यहाँ पे आईज वेल्डेड है अपराइट्स के ऊपर, तो हमें पता है कि यार यहाँ तक कार्गो है, यहीं पे इसकी आई है, यहाँ पे इसने वायर ने लगना है, शेकल किया इस आई के साथ, आई इज वेल्डेड ऑन दिस अपराइट्स, उसी हाइट पे उन्होंने वेल्ड किया। हर शिप का तो अलग अलग होगा फिर सभी? ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द शिप, ब्रेड्थ ऑफ द शिप का साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड हर अपराइट पे देखिए ये आई लगी होगी, आई वेल्ड की हुई है। ये नहीं कि हमने यहाँ पे इस अपराइट के चारों तरफ वायर नहीं घुमानी, हमने वो स्लिंग नहीं लेनी, इट्स ऑलरेडी द आईज आर वेल्डेड ऑन। ऐसा कुछ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि मतलब आफ्टर 2-3 मीटर वी हैव टू पुट अ हॉग वायर एंड ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है, ऐसा यू कैन पुट एक्स्ट्रा लैशिंग लेने के लिए कोई नहीं रोक रहा आपको, कि जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये देखिए अब देखो एक आई यहाँ पे है तो आप यहाँ पे लगा दीजिए। अगर बाई चांस हो सकता है बिगर शिप है उसकी, हो सकता है अपराइट्स की हाइट भी ज़्यादा हो, देन दे मे गिव यू ओके यू टू पुट 2 हॉग वायर्स, फर्स्ट लेवल हॉग वायर shackled to the uprights, this is the second level, so it depends कि कितनी आपने लगानी है, डिपेंड्स कि छोटा शिप होगा तो व्हाट इज द हाइट, तो कार्गो ही मैंने 2 मीटर तक लोड किया है, आई मीन टोटल हाइट ही अपराइट्स की 2 मीटर 2.5 मीटर है, तो हम 1 मीटर पे लगा देंगे वायर। तो रेशियो तो होना ही चाहिए ना सर, तो कि इतनी मीटर की हमारी अगर अपराइट है अकॉर्डिंग टू द शिप्स लेंथ, then there should be 3 I or maybe not less than 2 I, ऐसा कुछ? Yeah, that they have already, because जिन्होंने आईज अपराइट्स बनाए हैं, वेल्ड किया, they have already taken care कि कहाँ पे कितने लेवल पे होनी चाहिए, कितने मीटर पे होनी चाहिए, ये सारी कैलकुलेशन के साथ उन्होंने किया हुआ। क्योंकि जहाँ पे आई नहीं होगी, सपोज अगर मैं यहाँ से नीचे भी लगाना चाहता हूँ, मैं कैसे लगाऊंगा, आई तो यहाँ पे, सिमिलरली आई कैन नॉट गो हायर अप ऑल्सो, इजंट इट? ये देखो आपको आईज ऑलरेडी वेल्डेड है इसके ऊपर अपराइट्स पे, तो वो प्रॉब्लम नहीं आती। आई होप दैट्स योर डाउट, इज इट? यस। ठीक है, सो इसमें वो नहीं है कि जहाँ जहाँ आइज होंगी मैं वहाँ लगा दूंगा वायर। कई बार ठीक है दे देते हैं 2, बट मेरे को पता है, मैंने अभी देखिए इसी कार्गो को देखो, अगर मैंने यहीं तक कार्गो लोड करना है, ऑल द टाइम वी डोंट लोड कि आप टॉप तक जाते हैं, कई बार ठीक है शी कम्स टू द लोड लाइन, हैवी टिम्बर है तो इतनी हाइट पे ही ख़त्म हो जाएगा कार्गो, तो ठीक है यार इतना अपराइट से कई बार कार्गो नीचे भी रहता है, ऑल द टाइम ये नहीं कि हमने अपराइट तक ही जाना है, डिपेंड्स, लाइट कार्गो, हैवी कार्गो, टिम्बर भी अलग अलग है, कोई हैवी होती है कोई लाइट होती है। तो ये आपकी बेसिकली आई सजेस्ट कि फ्लैशिंग की अगर आपको आती है, या आप इस टाइप की एक बना दीजिए हॉग वायर शो करने के लिए, फुट वायर शो करने के लिए, आप ऐसी भी बना सकते हो या ऐसी भी बना सकते हो जिसमें आपने ये भी दिखा दिया। एंड थर्ड जो मैंने आपको विगल वायर की दिखाई थी, दिस टाइप या बर्ड्स आई व्यू वाला, ये वाला बना सकते हो या ये भी बना सकते हो। दिस ऑल्सो गिव्स अ गुड आइडिया दैट हाउ दिस विगल वायर इज पुट, used in the manner of a shoelace, passed continuously through series of snatch blocks held in place by foot wires, and turnbuckles may be set up between the blocks to keep the lashings tight. तो ये देखिए आपको यहाँ पे भी उसने क्लियर दिखाया कि यस यू मे हैव अ विंच और एनी अदर सिस्टम जिससे आप इनकी विगल वायर को टाइट कर सकते हैं। तो ये 3 स्केचेस अगर आप बना सकते हो 50% तो आपका यहीं पे काम हो गया। सो आई टोल्ड यू कि टिम्बर के लिए दे आर ओनली कंसर्न इज अबाउट द लैशिंग, तो थोड़ी सी अलग है, टिपिकल है, दैट्स ऑल। तीनों बना देने सर, या तीनों डायग्राम। सो इफ यू कैन मेक, चाहे ये वाला बना लीजिए, ये वाला बना लीजिए, इन दोनों में से एक बहुत है, यानी कि ये भी और बोथ आर सिमिलर, एंड देन वन आप इस टाइप का, ये नहीं, ये मुश्किल है, ये 3 डायमेंशनल पे डोंट वेस्ट टाइम, कार्गो पेपर लेंथी होता है, एवरी मिनट जैसे हम कहते हैं ना, मार्क्स के लिए एक एक मार्क्स को लाइक हम बचा के रखते हैं, सिमिलरली प्लीज़ टाइम एक एक मिनट बचाइए जहाँ पे भी आपका बचता है। एंड इट इज़ वेरी कॉमन, आई एम जस्ट गाइडिंग यू कि आपको कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, आप उसके ऊपर पेजेस के ऊपर पेजेस लिखना शुरू कर देते हो विदाउट रियलाइजिंग किया, तो 10 नंबर का क्वेश्चन है सर, एंड बारगेन में क्या होता है, एक क्वेश्चन छूट जाता है 25 नंबर, 10 में से कितने दे देगा मेरे को, 8, 9, 25 छोड़ दिया आपने, जहाँ से आपको 15-16 नंबर आराम से मिल जाने थे। तो ये प्लान जो है आपने हर चीज़ की, कहता हूँ एज अ चीफ ऑफिसर बने तो आप तो प्लानर क्या
यू आर द प्लानिंग कमीशन बन जाते हो शिप। हर जगह आपने प्लानिंग ही करनी है कि यार एग्जाम देना उसकी प्लानिंग, आंसर लिखना तब भी प्लानिंग कि किस प्लान से आंसर को लिखना है, कितना लिखना है, टाइम कैसे देखना। दैट इज आई फील दैट इज द मेन थिंग। अब ये देखिए इसके ऊपर जब आप चलोगे, इसी लाइक यूज्ड टू वॉक ऑन टॉप। अब ये इसकी जो चमड़ी ऐसे बार्क कहते हैं, अब ये निकलेगी, ये स्लिप हो जाता है। अभी आप यहाँ चल रहे हो अराउंड 20, तो आप इस तरफ भी गिर सकते हो, इसके बीच में भी जा सकते हो। एंड उसके लिए हमारे पास शूज़ होते हैं जो नेल वाले मैंने आपको बताया था। दीज आर स्टडीड ओवर शूज़ या स्पाइक्स टाइप होते हैं जो आई डोंट नो यू मस्ट हैव डन दिस रनिंग या फुटबॉल खेला होगा तो फुटबॉल के तो स्टड्स होते हैं, उसके स्पाइक्स होते हैं, नॉट वेरी शार्प बट नेल्स टाइप। वो इसमें डिग हो जाएंगी, वो आपको स्लिप नहीं होने देंगे। सो दोज आर द बेस्ट शूज़। हम नीचे डेक के बाहर ही रख देते हैं। एनीबॉडी वांट्स टू गो, अपने सेफ्टी शूज़ के ऊपर ही आप उसको पहन सकते हैं। सो दैट इज़ अगेन वन वे। सो अगेन योर शिप लुक्स लाइक दिस, फुली लोडेड। देखिए अभी कार्गो देखो अपराइट से कितना नीचे है। एंड ये क्राउनिंग देखो आप, अगर आई थिंक इफ यू कैन विजुलाइज, कार्गो को थोड़ा सा क्राउनिंग शेप दी है। अब ये पूरी की पूरी सब कार्गो को आपकी वायर्स टच करेंगे। सो दिस इज बेसिकली द, अगर इतना कंसेप्ट आपके माइंड में आ गया। अभी मास्ट हाउसेज है, यहाँ पे हम थोड़ी जगह रखते हैं बिकॉज आपकी साउंडिंग पाइप्स, एयर पाइप्स जो भी हैं वो यहाँ पे होगी। आई कैन गेट डाउन फ्रॉम हियर। नॉर्मली मैं तो स्टेप्स बना देता था थोड़े थोड़े की, थोड़ा इसको पीछे लोड करो। इन्हीं के कार्गो के साथ ही आप स्टेप्स बना सकते हो। अदरवाइज आजकल तो ऑफ कोर्स यू हैव प्लेंटी ऑफ एल्यूमिनियम लैडर, टेलीस्कोपिक लैडर, वो उठाए उसको जाके आप इस क्रेन हाउस के अंदर एंटर कर सकते हो कुछ भी। एंड सिमिलरली यू कैन गो फॉरवर्ड आल्सो। सो दिस इज बेसिकली, तो स्टेंशंस की हुक्स नीचे तक की होती हैं, इसका मतलब वो फुल स्टेंशन हाइट तक नहीं लोड कर सकते ना? या ये जो स्टेंशंस की हाइट है, यस आप कर सकते हो, उसमें नहीं है। अगर आप जाओगे भी तो इट डिपेंड्स आपकी, they have all calculated. Normally they give you some space you have on top, but कई बार लाइट कार्गो आएगा। आई विल नॉट प्रेफर कि स्टेंशन से ऊपर नहीं मैं जाऊँगा। नेचुरली आपका फिर विजिबिलिटी लाइन आ जाती है ना, हाइट के लिए विजिबिलिटी भी तो आ जाती है, विजिबिलिटी भी चाहिए। 2 ships length 500 meters, whichever is less IMO क्राइटेरिया, इसको भी वही IMO क्राइटेरिया। तो जितना मैं ज़्यादा जाता जाऊँगा तो विजिबिलिटी भी इफेक्ट करेगी, आई मीन विजिबिलिटी लाइन। ये इसमें भी वो दिखाता है आपको, दिस इज हाउ द वायर्स गो फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड फॉर टू स्टारबोर्ड एंड देन टाइटनिंग। एंड ये आपकी फॉग वायर दिखा रहा है बीच। दिस इज यू आर लुकिंग एट द शिप फ्रॉम आफ्ट। चलो ये तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे। सो व्हाट आई सजेस्ट इज प्लीज़ एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए। डू नॉट थिंक कि मैं सीधा ही MMD में जाके बनाना शुरू कर लूँगा, फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। Uprights should be fitted when required by nature, height or character of the timber deck cargo. Uprights fitted, they should be of course made of steel or other suitable material of adequate strength, taking into account the breadth of the deck cargo. Be spaced at intervals not exceeding 3 meter. They are all कहने को हम जो मर्जी के हैं, बट ठीक है थोड़ी सी नॉलेज है। कोई पूछे भी uprights कैसा, they are of course it is like a tested thing, something which they have calculated कि इन uprights के ऊपर कितनी फोर्स आएगी। So the ship builder जो हैं दे गिव यू ऑल द कैलकुलेशन। वैसे तो कोड में भी दी हुई है कि अपराइट्स की स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितना उनके ऊपर लोड आएगा। बी फिक्स टू द डेक बाय एंगल्स, मेटल सॉकेट्स और इक्वली सफिशिएंट मींस, एंड इफ डीम नेसेसरी बी फर्दर सिक्योर्ड बाय मेटल ब्रैकेट टू स्ट्रेंथन द पॉइंट। सो नॉर्मली सिस्टम उनका आसान रहता है अपराइट्स के लिए। अब आ गया नेक्स्ट इज टेस्टिंग, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन। So again as a chief officer definitely whichever wires, shackle, turnbuckles मैं मंगाऊंगा, I'll definitely have the certificates also with me. So all lashings, components used for securing of timber deck cargo should be tested, marked and certified. तो ये तो difficult है कि यार हर lashing को कैसे मैं उसकी marking करूँगा, but normally if you have enough, anybody comes for checking nowadays, you know शिप का काम कम है, इंस्पेक्शन ज़्यादा है। चाहे ऑडिटर्स हो, चाहे सुपरिटेंडेंट्स हो, चाहे PSC हो, चाहे कोर्ट वाला कोई ना कोई चला रहेगा, चलो चलें यार। उनको लगता है कि शिप पे जो ऑफिसर्स हैं उनको कुछ काम नहीं है, हाँ जाके उनसे जो मर्जी देखते रहो। सो नोबडी रियलाइजेस योर प्रॉब्लम एक्सेप्ट द पीपल हु हैव वर्कड इन योर चेयर, दे नो। सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल रेगुलेशन, सो इसका थोड़ा ध्यान दीजिए कि यस
सर्वेयर्स सर वो भी रियलाइज नहीं करते हैं। बच्चे मेरे घर वाले नहीं रियलाइज करते, बाकी तो छोड़ दो। हाँ सर वही सर सर वो सही बात है सर। सर मालबोरो और उसके लिए भी आते हैं डॉलर्स के लिए। बच्चे वो तो कोलंबस के टाइम से चली हुई चीज है। आज अगर तो आई डोंट वांट टू कमेंट, आप स्वेज कैनाल पे मत आना। so, तो लेके चले जाते हैं कई जगह चुपचाप। मैं खुद पायलट नहीं रहा सर, पर हूँ। कई जगह तो सर लेते भी हैं और फिर मारते भी हैं, मतलब लेनी तो है ही है उसने बाद में, यस, पर उससे पहले दे विल मेक अ इम्प्रेशन कि कुछ नहीं करेंगे। और या वो खराब है, वो खराब है। मैं खुद पायलट रहा हूँ तो अभी आई नो कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, बट इट इज़ बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मैं आपको सच्ची बता, लेट मी बी वेरी फ्री। आपकी बैकग्राउंड, ये सर वो तो है ही। आपकी मेंटेलिटी कैसी है, सो मैं अपने बारे में नहीं बोलूँगा, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल इवन इन बॉम्बे पोर्ट वी हैड व्हेन आई वाज sailing coming as a master of the vessel to Bombay port. So I had good relation with pilots, but nothing. ठीक है, मेरे बैचमेट्स भी थे। नो, हाँ बैचमेट हुआ कि चल यार शाम को तेरे घर आएंगे, चल ये ले जा, वो बात अलग थी। बट अदरवाइज सो चलो छोड़ो, ये चीज़ें हैं, बट दीज आर ओवर हेड्स है। टुमारो यू बिकम चीफ ऑफ मास्टर। मैं तो कह रहा हूँ अभी ये बंद हुआ तो प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। जब तक ये चीज़ थी, इट वॉज वेरी इजी टू गेट द थिंग्स डन अप। यार कमर्शियल वेंचर पे वी आर वर्किंग, हमें तो जॉब करानी है, इजंट इट? सही बात है सर। शिप इज सर हमारे कस्टम वालों ने बहुत हालत खराब करके रखी थी सर। वाडिनार में आए थे सर, 50 कार्टन लेके गए थे। बच्चे मैं तो SCI में 17 साल मैंने SCI में काटे हैं, 17 ईयर्स। SCI के शिप्स यू नो इंडिया पे ही चलते हैं, तो फॉरेन भी जाते हैं, बट फाइनली भी कोस्ट अराउंड इंडिया। यूके से जनरल कार्गो शिप आएगा तो राइट फ्रॉम बॉम्बे, कोचीन, मेड्रास, वाइजैक, कैलकाटा सब जाएंगे। And can you imagine, I used to get 2000 rupees as a master entertainment allowance, only 2000 rupees होता था per month। क्या आता है 2000 रुपीज़ में? 5-6 पोर्ट आपने इंडिया में टच करने और उसके बाद स्वेज कैनाल उसी महीने में। स्वेज कैनाल इज द इवेंट ऑफ द वॉयज, हमारे इवेंट होती थी वॉयज की, जेब से देना पड़ता था। चलते थे, खुश रखते थे यार, कोई बात नहीं है। और तो कुछ नहीं सर, इंटरनेशनल क्रू के साथ होते हैं ना तो अपने देश का नाम खराब होता है सर, और बात कुछ नहीं है। इंटरनेशनल क्रू के साथ थे रशियन मास्टर्स एंड सारे मिक्स क्रू हैं सर, इंडिया का नाम खराब हो रहा है। 50 सिगरेट कहीं पे भी नहीं लेके जाते। I know, I have lot of, I can't speak so many things, we are of course। सर खुद को भी दुख होता है सर, और फिर कुछ बोल भी नहीं सकते इनको। और कंप्लेंट भी हो गई थी सर इस चीज की, इट इज आई थिंक बंद हो गया, उसके बाद कम हो गया काफी। यस, मुंद्रा में, आई नो दैट, मुंद्रा की हुई थी, मुंद्रा में। सो यस सर। मेरे पास तो बहुत है, क्या तो रहा हूँ मैंने 17 ईयर्स तो इंडियन कोस्ट पे। सो आई हैव लॉट ऑफ पर्सनल थिंग्स व्हिच आई हैव सीन, आई हैव गॉन थ्रू, एंड आई मीन बेटर। मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, सूनर और लेटर यू आर गोइंग टू सिट इन दैट चेयर, एंड आई सजेस्ट यू out of my personal experience, just overlook these things. Whatever your company says, yes, you take a sanction from the company. Most of the time the companies know कि सर यहाँ पे इतना overheads हैं, ये मेरे को देना ही पड़ता है, they will not mind। देने में कंजूसी नहीं करने का सर। नहीं करते हैं, बट जहाँ पे हमारे सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑल दैट, आई वॉन्ट से कि हम लोग ही उनको कहते हैं कि सर नहीं है, ऐसा नहीं करो, ये करो, काटो। शिप ओनर जो है या शिपिंग जो है, वो एक उसका जो मालिक होता है ना, उसका स्टील का जिगरा होता है। दे डोंट डील इन 8 आने 4 आने, 8 चौनी में नहीं काम करते, दे डील मिलियंस, मिलियंस प्लस या मिलियंस माइनस। तो ये उनके लिए बहुत छोटी चीज़ होती है, बट ये है कि छोटी छोटी करते हुए एक्सेस भी बुरा है। अगर हम उसको देते जाए, आज आपने 50 दिए, फिर नेक्स्ट ट्रिप में 60 हो जाएंगे, फिर 70 हो जाएंगे। सही बात है। तो इसलिए आपको ये बच्चे, ये जितनी जल्दी, जितनी यंगर एज पे आप सीख लोगे, बिकॉज दिस इज डिप्लोमेसी। आई एम कम हेयर ऑन द शिप, आई हैव टू लोड द शिप, आई हैव टू डिस्चार्ज द शिप। 2 दिन 3 दिन मैंने रहना है, रेगुलरली मैंने आना है। वाई शुड आई बाई एनिमिटी विद एनीबडी? कभी वैसे चांस मिलेगा
ऑफ द रिकॉर्डिंग आपको मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा तो आप भी हैरान होंगे कि यस, हमारे वाले तो बहुत ही ज़्यादा कह रहे हैं, दे गो टू एक्सट्रीम, वेरी अनकूथ, बट आई होप कंट्री अब थोड़ा इम्प्रूव हुआ। ठीक है सर, ऑफलाइन आएंगे फिर सुनेंगे कभी। या चलो, तो टेस्टिंग एग्जामिनेशन प्लीज बी वेरी केयरफुल। सो ऑल दिस वायर्स यू नो दैट कि कुछ भी आप करते हो, idea is not to have the ship in problem. Any inspection comes, any inspection, यहाँ भी आप लैशिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हो क्या सर? यस, दिस इज़ अ सर्टिफिकेट, इट इज़ जस्ट अ शो बिजनेस कि हाँ यार आपने एक फाइल अच्छी से मेंटेन करके रखी है। आई नो दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। 20 कॉइल्स ऑफ वायर आपने यूज़ किए हैं, कौन सी लैशिंग की कौन सी वायर है, कहाँ पे है, पकड़ने को कोई भी जाएगा, कुछ भी कर सकता है। बट इट इज़ अगेन योर पर्सनल है कि सर दिस इज़ द लैशिंग मटेरियल आई हैव रिसीव्ड, this is the certificate, this is how we keep, and that's all. Visual examination, all securing points of the ship. Now this becomes important आपके point of view से। देखिए वायर्स, चल हम कहते हैं ड्यूटी ऑफिसर्स, ड्यूटी क्रू जो भी है, जब वो लैशिंग लेंगे दे विल सी ऑल दीज थिंग्स। बट आपके लेवल पे मेंटेनेंस, द बिगेस्ट threat becomes is eyes. I told you, you don't get any time to maintain the deck. Deck goes very bad, timber carriers, time ही नहीं है, पैरास पैसेज पे रोड क्लीनिंग सब कुछ करते रहो। बट एटलीस्ट दीज आईज, जिन्होंने कंटेनर शिप्स पे काम किया, यू मस्ट हैव सीन दिस आई सॉकेट्स एंड जो लैशिंग आईज हैं, एटलीस्ट हम उनको पेंट करके रखते हैं। तो बाकी ठीक है, रस्ट शिप कैन नॉट बी रस्ट फ्री, बट दीज आर द पॉइंट्स जिस पे मैंने लैशिंग लेनी है, जिस पे मैंने कुछ करना है, वो नहीं ब्रेक होना चाहिए। अदरवाइज आई एम फूलिंग माई सेल्फ, क्या सर न्यू वायर से लैशिंग ली है, वायर इज टाइट, एवरीथिंग इज टाइट, टर्न बकल भी पूरा टाइट किया, और जिस पॉइंट से लैशिंग ली है उसकी थिकनेस वैसे ही आधी हो चुकी है आई की। तो ये चीज़ जो है कि आपने उस एंगल से सोचना है। प्लस अगर आपके पास इतना विजन आ गया, आई थिंक एनी एग्जामिनर यू कैन आंसर एनीथिंग। सर मैं इन पॉइंट्स को ध्यान रखूँगा। लैशिंग प्लान्स, ऑफ कोर्स कार्गो सिक्योरिंग मैनुअल है कि we definitely will have a plan on board, we'll make a plan of the lashing and we'll educate all the crew also कि आपने कैसे कैसे इसकी लैशिंग करनी है। पर्सनल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी डिवाइसेस, अब इस पर भी कई बार क्वेश्चन डाल देते हैं। क्वेश्चन सिंपल होता है बट वो वर्डिंग ऐसे बनाएंगे, लगता है यार पता नहीं इसमें एक बड़ा मुश्किल क्वेश्चन कर दिया। पर्सनल प्रोटेक्शन सेफ्टी डिवाइसेस क्या है? इट्स लाइक हाउ टू वॉक अक्रॉस फ्रॉम द कार्गो। Suitable protective clothing equipment such as studded boots, studded overshoes and hard hats should be provided for the protection of the crew members and workers involved in loading, securing and discharging operation. First thing तो यही आ गई PPE हमारी, what we use. क्वेश्चन को पढ़ के लगता है यार पता नहीं what they are expecting. The same thing is first, suitable PPE. During the course of voyage, if there is no convenient passage for the crew on or below the deck of the ship, giving safe means, then we make a guard lines or rails not more than 330 millimeter. अब I don't know, the ship I was working we had these truncheons, so जैसे gangway के पास होते हैं उनके नीचे, तो bottom of those truncheons was like a sharp thing, तो आप उसको हैमर से कीजिए तो we used to nail these truncheons. So उनका सिस्टम ही ऐसा बना हुआ था, इन these logs में आप उसको एक किस्म का ऊपर से हैमर कीजिए, उसके अंदर चला जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा वो तो खराब होगा कार्गो, वैसे तो कार्गो खराब होता है जब वो काटेगा, बट ज़्यादा डेप्थ पे नहीं जाता। सो यू कैन रीच दीज ट्रांशंस एंड व्हाट वी कॉल दैट लाइफ लाइन और दिस मैन रोप्स उसके बीच में से। सो गार्ड रेल्स नॉट मोर देन 330 मिलीमीटर एंड 1 मीटर अबव द कार्गो। यहाँ से ठीक है, मैं कार्गो के ऊपर से बना दूंगा जाने के लिए। एंड बैड वेदर में तो मेरे को पता है मैंने किसी को भेजना ही नहीं, जाने ही नहीं देना, वाई टेक अ रिस्क। कोई ऊपर से अगर थोड़ी ज़्यादा रोलिंग हो रही है तो नो वे, डेक पे हम मना कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो वाई शुड वी सेंड समबडी ऑन टॉप ऑफ द कार। बट दीज आर द केसेस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी, कुछ है, जाना है, शिप को बचाना है, तब इज अ डिफरेंट स्टोरी। लाइफ लाइन प्रेफरेबली वायर रोप सेट अप आउट एंड टाइटनिंग डिवाइस शुड बी प्रोवाइडेड। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स टू ऑल गार्ड रेल्स और लाइफ लाइन शुड बी स्पेस्ड सो एज टू प्रिवेंट अनड्यू सैगिंग। सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल केस कि जी ठीक है, हम उसके ऊपर वॉकवे बना देंगे, गार्ड रेल्स बना देंगे, बंदा पकड़ के चल सकता है। And where the cargo is uneven, safe walking surface of not less than 600 millimeter. Again what he says कि एक flat dunnage वहाँ पे लगानी कर दीजिए if it is uneven. वैसे तो cargo even रहता है, same है, height भी उसकी बराबर है, so only your guard rails or man ropes are enough.
properly constructed ladders, steps or ramps fitted with guard lines or handrails should be provided from top of the cargo to deck, कि कार्गो के ऊपर जाने के लिए और फॉरवर्ड में कार्गो के ऊपर से नीचे उतरने के लिए दोनों तरफ लैडर्स जो हैं हम बना देंगे। आजकल तो ऑफकोर्स एल्यूमिनियम की जो है टेलीस्कोपिक टाइप लैडर्स, अच्छी लैडर है, उसको खाली आराम से रख सकते हैं इनको। आई यूज टू मेक ऑफ वुड, एक बार बना दिए हर बार काम आएगी। एक्शंस टू बी टेकन ड्यूरिंग द वॉयज, ये भी क्वेश्चन है, व्हाट एक्शंस टू बी टेकन ड्यूरिंग द वॉयज एज पर द टिम्बर कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल lashing, tightening of lashing, paramount importance, all lashing carefully examined, tighten at the beginning of voyage and as usual during the voyage daily routine है, किसी भी शिप पे चले जाओ मॉर्निंग 1 hour बोसन अपनी टीम के साथ चलो भाई, they should be further examined at regular intervals during the voyage. Entries of all these examination, sincerely tell me how many of you have been making these entries in your logbook? चलो एज अ सेकंड ऑफिसर तो आपकी वॉच ही odd time है, people don't go for checking the lashings, but when you are third officer 8 to 12 वहाँ पढ़ते थे, या वैसे तो चीफ ऑफिसर की वॉच में आ जाता है कि मॉर्निंग 6 या 7 o'clock we check the lashings. So please remember, entry in the logbook is very important, not only for timber, for any cargo. And I correct you here, we have a tendency all lashings checked found satisfactory. These are wrong terminology. Satisfactory I got no meaning. What do you mean by satisfactory? तो हम सिंपल लिखते हैं all lashings tended to found in good order. हम ये कह ही नहीं सकते अगर ठीक नहीं है तो मैं उसको ठीक करूंगा, सिंपल। हम ये तो कह नहीं सकते all lashings found slack। ये टर्मिनोलॉजी आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। वाई? क्योंकि 99.9% का भी होता नहीं है, बट 0.1% व्हेन समथिंग हैपन्स, कार्गो गेट्स लॉस्ट ड्यू टू वेदर एनीथिंग, फिर इन चीज़ों को पकड़ते हैं। एंड इट इज़ बेटर यार, हम जितना अपने प्रोफेशन को जितना अच्छी तरह से सीखेंगे, जितनी लीगल लैंग्वेज और लैंग्वेज आपकी जितनी कमांड ऑन द लैंग्वेज अच्छी होगी उतने ही आप सक्सेसफुल रहोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमेशा कहते हैं यार ठीक है हम कुछ भी एक्सप्लेन कर देंगे, हाथ से कर देंगे। वी ऑल आर वर्किंग टाइप पीपल, हम लोग ऑफिस टाइप वाले नहीं हैं। बट बच्चे जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाओगे, आप कोई मैनेजरियल स्किल्स आपको इंक्रीज करनी है, टेक्निकल स्किल्स आपकी कम होती जाएंगी। तो ये चीज़ों का राइट यार, अब मैं नेक्स्ट शिप पे जाऊँगा, आपका वे ऑफ वॉकिंग, टॉकिंग, एवरीथिंग, चाहे आप थर्ड ऑफिसर ही जा रहे हो विद मेट्स टिकट, बट इट शुड शो यार, हाँ यार बंदे में कुछ तो है। तो सेम एक सिंपल लाइन लिखनी, कैप्टन भी पढ़ेगा, दूसरे ऑफिसर पढ़ेंगे, कहेंगे यस द चीफ ऑफिसर नोस all lashings tended to or all lashings tightened found in good order. Satisfactory क्या? During the voyage, all foreseeable risks which could lead to either excessive acceleration causing cargo to shift or sloshing sea causing water absorption, ice aggregation should be taken under consideration. Simple. So under consideration क्या लेना? If the vessel is passing through a bad weather, I will not allow her to excessively roll. Either control, reduce the speed, alter the course. I got such a huge load of cargo on deck, and which is sensitive to these rolls. Before the ship proceeds to sea, following verified she is upright, adequate stability, cargo properly secured. Soundings of tanks. बच्चे शिप में काम करना अलग है। I know that you have only 2.5 people on board today. It's very difficult, very easy to say कि यार डेली साउंडिंग होनी चाहिए, 2 टाइम साउंडिंग चेक करनी चाहिए, यार बंदे कहाँ हैं हमारे पास। बट डियर फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस प्लीज़ मेक श्योर दैट यस सर मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, ये करूँगा, सब कुछ करूँगा। साउंडिंग्स, रोलिंग पीरियड ऑफ द शिप, अगेन इट इज़ जस्ट गिव्स यू एन एस्टिमेशन कि यार कहीं नेगेटिव तो नहीं जा रहा मैं। इन केस वेयर सीवियर वेदर, सी कंडीशन, दिस इज ऑल व्हाट दे हैव रिटन इन द कोड। अब उन्होंने कोड में क्या लिख दिया, यही चीज़ तो हम करते हैं। अगर आप देखो प्रैक्टिकली द सेम थिंग्स वी डू एट सी। अब उसी चीज़ को उन्होंने थोड़ी सी अच्छी वर्डिंग देके कोड में भी लिख दिया कि हाँ अच्छा भी यही है कि यस इन सीवियर वेदर
need to reduce speed, alter course at early stage in order to minimize the forces imposed on cargo, structure and lashings. And if deviation from the intended voyage plan is considered, yes, we deviate. You know, right ahead, 400 miles, 500 miles, there is a TRS developing. I'm not going to head for TRS. Definitely deviate. So if deviation is there कि ठीक है दोबारा से दूसरी प्लान बना देंगे. All examination adjustments to cargo securing during voyage should be entered into the ship's log. जो भी है बही खाता तो हमने रखना ही है. Documentation, anything happens on the ship must be documented. ये चीज आपने सीख. सर ये जो साउंडिंग का सर आपने बताया, साउंडिंग पाइप सब पीछे होती हैं क्या अकोमोडेशन के पास ही? No, क्योंकि आगे तो सारा डेक कार्गो भरा होगा सर. या बच्चे आपको मैंने देखो क्रेन जहाँ क्रेन्स लगी हुई हैं, क्रेन हाउसेज. अच्छा. तो क्रेन हाउसेज में थोड़ी क्रेन हाउसेज के पास आपकी साउंडिंग पाइप्स लगेंगी, बिकॉज डीबी टैंक्स तो सारे फर्दर डिवाइडेड है ना ऑल ओवर द लेंथ. तो आगे से पीछे तक है, तो क्रेन हाउसेज के पास आपकी साउंडिंग पाइप्स रहती हैं, तो वो एरिया थोड़ा क्लियर रहता है. ओके. लिस्ट वो कहता है इफ अ लिस्ट अकर्स दैट कैनॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द नॉर्मल यूज ऑफ कंज्यूमेबल्स, बट ही इज ट्राइंग टू से कि यार ड्यू टू नेगेटिव स्टेबिलिटी तो कहीं लिस्ट तो नहीं आ रही शिप में डेवलप हो रही. So this is what we have to see. अगर लिस्ट होती है तो अगेन एज अ चीफ ऑफिसर वी डोंट इमीडिएटली कम टू द कंक्लूजन कि यार इट कैन नो. The matter investigation का nobody else bothers. I am telling you. As a chief officer only you will see, because I personally have gone through. कि सुबह हो यार देखो यार she has got 1 degree, 1.5 degree या 2 degree पोर्ट लिस्ट. आप पूछो यार पोर्ट लिस्ट होगी यार, जहाज में स्टारबोर्ड लिस्ट होगी कि सर पता नहीं. इंजीनियर्स को तो ठीक है, वो फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं, उनका नीचे तो वैसे ही एंगल ऑफ लिस्ट वैसे ही नहीं, इंजनों को तो वैसे ही नहीं पता लगता कि लिस्ट हुई या नहीं हुई, सीधा या कुछ भी. फिर आप इन्वेस्टिगेट करोगे, बड़ा साहब को पूछोगे साहब ज़रा देखो पोर्ट लिस्ट हो गई है तो फ्यूल कहाँ से कंज्यूम कर रहे हो, इवन कर दो इधर से करो. तो ये सारा मैटर आपकी नॉर्मल लाइफ बन जाती है. या गो अहेड सर. ये जो कार्गो शिफ्ट सर लिखा है ना, कार्गो शिफ्ट सर, ये कार्गो शिफ्ट अगर सर डेक पे हुआ होगा ना सर, ऑन मतलब डेक कार्गो में, तो सर इट विल बी इजीली विजिबल. अगर सर ये नीचे हो गया होगा अगर अंडर डेक में कार्गो में, तो हम सब कुछ कर ही नहीं सकते सर उसमें. तो करेक्ट वही कह रहा हूँ. सो अभी उसके लिए देखो, अब अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ गई कि लिस्ट हो सकती है कार्गो शिफ्ट में, तो बिफोर लोडिंग, ड्यूरिंग लोडिंग, उसी वक्त मेरे माइंड में ये चल रहा होगा कि यार वॉइड नहीं रखने मैंने. Isn't it? So ये देखिए क्या हो सकता है. ये तो चलो ड्यू टू द स्टेबिलिटी शी मस्ट हैव सफर्ड, यार आपने लोड कर दिया नीचे में, सारा कुछ कंज्यूम कर दिया विदाउट वॉचिंग. आई वोंट कमेंट ऑन एनीबॉडी. ऑफ कोर्स पीपल जो भी हैं जैसे भी हैं, एटलीस्ट यूएसएल लेवल पे पीपल डू टेक केयर. आपका फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, कुछ भी है, ठीक है फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, यू मे बी लिटल, जिसे कहते हैं आपकी स्टेबिलिटी जीएम ज़्यादा ना हो, कोई बात नहीं. 500 टन अगर फ्यूल कंज्यूम कर दिया सर, 400 टन बैलास्ट ले लो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें. ये चीज़ों को आपने थोड़ा सा ध्यान रखना कि यस कार्गो शिफ्ट आपके माइंड में है कि यस इट कैन क्रिएट. अगर अंडर डेक स्टोरेज में अगर वॉइड्स हैं, वैसे तो अगर आप मेरे को पूछ लीजिए इतना वॉइड तो कोई भी नहीं रखेगा. ज़्यादा से ज़्यादा लॉग जो है थोड़े बहुत इधर से उधर हिलेंगे, एंड दैट मच इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट योर लिस्ट. अभी आपने देखी है स्लाइड्स में कि हाउ मच यू नो इवन अगर वॉइड कोई आ भी रहा है तो कितना आ रहा है. ये तो है नहीं कि पूरा पोर्ट साइड खाली पड़ा, स्टारबोर्ड साइड लोड कर देंगे तो पोर्ट साइड का कार्गो स्टारबोर्ड साइड चला गया. बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यस अगर बाई चांस शिफ्ट होती है सब पोर्ट्स में ड्यू टू द शेप ऑफ द कार्गो, शेप ऑफ द होल्ड, तो हमने वहीं पे प्रिकॉशन ले लिया कि सर नो आई एम श्योर मैंने कार्गो लोड किया, यू नो देयर इज नो चांसेस, कार्गो है ही नहीं, स्पेस ही नहीं है, शिफ्ट कहाँ से होगा. यस सर. कॉइल्स थोड़ा ना, स्टील कॉइल्स तो है नहीं कि लैशिंग टूटी जी सारे के सारे कॉइल एक तरफ रोल होके आ गए. देन दे क्रिएट स्टील कॉइल्स, दे क्रिएट हैवॉक. ये तो लंबे लॉग्स हैं. बट अगेन आपके माइंड में अब आ गया तो मैं लोडिंग के टाइम में मैं इसीलिए देखूंगा यार ठीक है स्पेस तो है ही मेरे मन में कि आई डोंट वांट टू वेस्ट स्पेस, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई डोंट वांट एनी वॉइड्स बिकॉज आई डोंट वांट लेटर एट सी द कार्गो टू शिफ्ट.
एंड इसीलिए उसने कह दिया however entry to the holds please be very careful because एक तो लॉग्स हैं, ऑक्सीजन डिप्लीशन फर्स्ट, एंड सेकंड वैसे भी नहीं आपका होल्ड्स फुल होगा, जाने का चांस ही नहीं रहता, यू कांट गो, यू कांट एंटर ऑन, एंड जाके करना भी नीचे होल्ड कौन सा खाली, होल्ड तो फुल है। बट अगर किसी स्टेज पे यू फील दैट कि होल्ड्स आर नॉट फुल, हाफ एम्प्टी कुछ भी है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब वी आर थिंकिंग अबाउट कि हाँ यार पूरा होल्ड ऊपर तक फुल है तो शिफ्टिंग कहाँ से होगी। अब सपोज मैंने लो होल्ड ही नहीं फुल किया, वो वही आधा हाफ लोडिंग हुई है, तो हर टाइप का सिनेरियो आ सकता है कि यस, तो देन वी नो अगर मैं पार्ट लोडिंग करता हूँ या होल्ड फुल नहीं है तो फिर भी मैं देखूंगा यार ग्रेन तो है नहीं कि 10 डिग्री या 12 डिग्री रोलिंग हुई तो ग्रेन शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी, कि लॉग्स इतनी जल्दी तो शिफ्ट होंगे नहीं। The possibility of water ingress also should be determined by soundings. And again, आपकी stability. So all these things you have to keep it in mind लिखने के लिए। अब वो कहता है jettisoning of cargo during the voyage. So अगर final resort when all other options have been exhausted, if the list is to be corrected by jettisoning deck cargo, फिर उसके लिए भी आपको थोड़ा सा mentally prepare होना है। Jettisoning is unlikely to improve the situation entirely. अब इस कार्गो को जेटिशन करना इज़ नॉट दैट ईजी कि आपको जी मैं ऊपर से वायर काट दूंगा तो कार्गो सारा पानी में चला जाएगा। लिस्ट को ठीक करने के लिए वन साइड का कार्गो जेटिशन करना इट्स वेरी इजी टू राइट एंड से, बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। शिप इज़ ऑलरेडी गॉट अ लिस्ट, जैसे पिक्चर में देखा और उसमें मेरे को कार्गो जेटिशन करना, यू थिंक इट्स पॉसिबल? बट एनीवे, कहता ना मरता क्या नहीं करता, अगर एक्सट्रीम केसेस में कुछ करना पड़े, so that's what they say, the whole stock probably will not fall at once. Severe damage may be sustained by propeller if still turning when the timber is jettisoned, and it will inherently dangerous to anyone involved in the actual procedure. अब अगर मेरे को करना है, the position of jettisoning procedure and estimated navigational hazard must be immediately reported to coastal authorities. बाकी काम तो हम करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले if क्वेश्चन सर्वेयर कोई भी पूछ सकता है कि सपोज द सिचुएशन कम व्हेन यू हैव टू जेटिशन कार्गो, सो व्हाट ऑल प्रिकॉशन, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू डू। द इंफॉर्मेशन ऑन डायरेक्ट डेंजर टू नेविगेशन शुड बी कम्युनिकेटेड बाय मास्टर बाय ऑल मींस एट हिज डिस्पोजल, एंड अगेन शिप्स इन द विसिनिटी एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कोस्ट विद विच ही कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली। शिप का तो पहले ही है, तो हमें पता है हम अपना चाहे VHF पे चाहे जो भी है, जो भी मीन्स आजकल हैं, जो भी लेटेस्ट आपके पास है, कि वी इन्फॉर्म द अदर शिप्स के भैया वेदर माई कार्गो इज गॉन ओवरबोर्ड और आई एम throwing it overboard, it should be given such information to include kind of danger, position and time and date. कोई बड़ी हमने प्रेसिडेंट को चिट्ठी तो लिखनी नहीं है, few things we have to write, we can transmit कि this is the situation, that's all what we can do, that's all. Yeah, warning the other people from the danger of this cargo. Now this is the formula they have given to calculate this visibility, कि आपकी ये जो V है that is from here up to sea surface, जो आपका दिखेगा this is sea surface, उसका फॉर्मूला भी उसने दिया 1 into 4 divided by 3 minus 4 minus 2, what is 1 2 3 4, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है। these are basically your, ये सारी डिस्टेंसेस जो हैं KC KS KS KP, so ये उसने सारा यहीं पे एक्सप्लेन किया। So just go through this, so you can easily calculate कि मेरी visibility कितनी होगी। Last thing, bill of lading, of course, even for the masters to do. The continuing trade in timber from tropical countries has resulted in more and more packages being offered for shipment as clean dried. Sometimes this expensive timber जो है naturally इसको क्लीन्स में भट्टियों में ड्राई करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब उस कार्गो को जिसको ड्राई किया उसको तो मैं डेक पे नहीं ले जाऊंगा, डेक पे लेके गया तो सारी उसकी बेचारे की कॉस्ट जो गई। So serious claims have arisen against some vessels where clean dried timber has been stored on weather deck for a voyage to Europe and elsewhere. And masters must ensure all such timber, even if wrapped, sheeted or otherwise profusely covered, is loaded below decks. And where shippers and or charterers insist on vessel carrying such timber on weather deck, again note of protest, you have to be good in your job. कुछ भी करते हैं सुनता तो हमें है नहीं सर, we can only see, we can only read,
तो लिख दीजिए, हम भी लिख देंगे। सुनने में हमें थोड़ी वैसे ही कम सुनता है, बोलने में शिप का एक ही चीज़ है, ना ज़्यादा बोलना और ना ही ज़्यादा सुनना, कि सब सुनता ही नहीं। हाँ पढ़ सकता हूँ, लिख दीजिए। Ensure all mates' receipts are closed, accept no letter of indemnity, instruct the local agents to close the bills of lading and act accordingly. The masters who allow themselves to be persuaded to do less than this is necessary in line of stowage and securing for whatsoever reason. You face the music, become everybody's scapegoat, and when cargo is lost overboard, the ship's structural seaworthiness is breached, and the port of refuge, re-stowage, these things or delay and legal costs come home to roost. Stand your ground and have things done properly. So ये थोड़ा सा आपको slowly of course बच्चे you will learn that there is nothing to worry कि हाँ यार मेरे को नहीं आता, वैसे तो time teaches everyone, बट ये है कि हमें थोड़ा सा लैंग्वेज, थोड़ा सा लीगल पार्ट ऐसा चाहिए ऑफिसर कि हाँ भाई नोट ऑफ प्रोटेस्ट, लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे। वी शुड नॉट बी अब्यूसिव, वी शुड नॉट बी हार्श, पोलाइट बट फॉर्म। चलो, that's all I have for the day. So I hope any questions from anybody. सर ये ये स्लाइड नोट्स थी भेज सर इससे दीजिएगा पहले की हाँ जी, सर Go अभी ahead. आपने एक स्लाइड दिखाई थी, इससे पहले वाली सर, इससे पहले वाली थी, इससे भी पहले। हाँ सर यहाँ पे कुछ लिखा है सर, शिपमेंट एस किल्न राइट। Clean dried, हाँ clean dried, clean dried मतलब हाँ। clean कहते हैं आपको भट्टी, देखा ना जहाँ ईंटें बनती हैं अपनी अच्छा bricks, भट्टी, हाँ। हाँ उसको clean कहते हैं। अच्छा अच्छा। आई होप एवरीवन नोज ना, ये ब्रिक्स हम घर नहीं बनाते ईंटों से, ईंटें देखी कभी बनती हुई देखी, भट्ठा कहते हैं उसे पंजाबी में हम। हाँ ईंटों हाँ हाँ सर सर। भट्टा से चिमनी वाले ईंटों ईंटों का भट्ठा। पट्ठा सर, पट्ठा। हाँ इट्स अ वेरी बिग बिजनेस। सो यस सर बहुत ज्यादा। हाँ जी, तो कई बार उसको है कि अगर कोई टिम्बर है, जैसे मैंने कहा ना टिम्बर की सीजनिंग होती है, नॉर्मली इट इज़ डन नेचुरली। पानी में डालेंगे फिर उसको धूप में रखेंगे सूखेगी, ताकि उसके अंदर जो तेल है वो सूखना चाहिए, नहीं तो टिम्बर बेंड हो जाएगी। आपने दरवाज़ा बनाया तो टेढ़ा हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। सो सर इसीलिए अंडरटेक सर कौन सा करते हैं? हाँ उसको फिर ये है कि यस अगर वो किन ड्राइड है, इसीलिए कहते हैं ना, आगे ना वो MSDA शीट्स आ गए हमारे कि भैया इसको बताइए। ड्राइड किया गया है ना, तो ऊपर रखेंगे तो फिर बारिश वारिश होगी फिर वो फिर से पानी में आ जाएगा वो। उसको ऊपर नहीं रखना ना, इसी का बीइंग ऑफर्ड फॉर शिपमेंट एज क्लीन ड्राइड एंड रिक्वायरिंग अंडर डेक स्टोरेज। मतलब उसको नीचे रखना है इसलिए ना सर। यस हाँ, दैट मस्ट बी स्टोर अंडर डेक। अभी क्या होता है, एजेंट्स वगैरह किसी को पता नहीं है, कुछ पढ़ता नहीं है, ओके नहीं नहीं कैप्टन ओके वी विल लोड ऑन डेक, एंड जबकि पेपर्स में लिखा हुआ है, BL में उसने लिखा है इट इज़ अ क्लीन ड्राइड दिस थिंग। जैसे मैंने आपको बताया नहीं है कि इवन इसमें रीफर्स में, अब वहाँ पे वो लिख देगा समथिंग लाइक फिशिंग प्रोडक्ट और फिशरी प्रोडक्ट। अरे फिशरी प्रोडक्ट में तो इट्स अ वेरी एम्बिग्यूअस टर्म। आप वहाँ पे आप सिंपल लिखिए ना कि हाँ यार इट इज़ अ फिश और इट इज़ बड़ी हिल्सा और इट इज़ जो भी आपकी एक्सपेंसिव फिश है, तो आई विल डेफिनेटली टेक केयर। तो दिस इज अ रॉन्ग डिक्लेरेशन ऑफ कार्गो। अब वहाँ पे कार्गो तो उसने डिक्लेयर कर दिया कि इट्स अ क्लीन ड्राइड टिम्बर, एंड एजेंट या जो दूसरे बंदे हैं, हाँ कैप्टन वी लोड ऑन डेक नो प्रॉब्लम। कल को एजेंट ने थोड़ा ना कहना, हो तो कहेगा मैंने बोला ही नहीं। क्लेम किसके ऊपर आएगा, शिप के ऊपर आएगा, शिप ओनर। कैप्टन को ही आंसर करना पड़ेगा कि ये देखो आपने पढ़ा नहीं। एंड वहाँ पे हम कहते हैं कि यस भाई ये देखिए, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लाइक एनी कार्गो की इंफॉर्मेशन मेरे को पता लगती है, मेरे को देते हैं कि भाई ये ऐसी ऐसी टिम्बर है, नीड्स अंडर डेक स्टोरेज, आई विल से सॉरी आई विल नॉट लोड ऑन डेक। अगर इंसिस्ट करेगा ये लो, अब ना थोड़ा ना करनी, पकड़ो फिर तुम भी मेरी तरफ से लेटर पकड़ो, आई एब्सॉल्व माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स कंपनी एवरीवन गेट्स इन्वॉल्व दैट टाइम, कि अगर हम एजेंट के ऊपर थोड़ा ना होता है कि हाँ जी कार्गो इतना बड़ी मिलियंस डॉलर्स इन्वॉल्व, किसी का कार्गो खराब होगा तो हु इज गोइंग टू पे फॉर दैट टुमारो? यू थिंक द कंपनीज एवरी डिपार्टमेंट कैप्टन विल इन्वॉल्व, टेक्निकल हो कमर्शियल हो कुछ भी हो, कि बताइए जी क्या करना है इसको। चलो
इसलिए है कि आपने किसी के कहने पे नहीं आना. सम पीपल टुडे वेरी कॉमन, दे से आई गिव यू एन लेटर ऑफ इंडेमनिटी, हैज गॉट नो मीनिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ. लेटर ऑफ इंडेमनिटी, आई विल नॉट टेक एनी क्लेम, आई विल नॉट गो फॉर द क्लेम. कल को डैमेज होगा, नहीं यार मैं बोल रहा हूँ सॉरी. बीएल में लिखिए ना, मेरे को जो दिख रहा है मेड्स रिसीट, अगर आपको साइन करनी है भाई, आप मेरे को तो जो दिख रहा है कार्गो अपेरेंटली, मैं तो लिखूंगा. नहीं है चेंज कर दो, कार्गो चेंज करो, डैमेज है मैं नहीं लेके जाता. फिर लेट समबडी, जो आपके जो ओवरराइडिंग अथॉरिटी है, कैप्टन वांट्स कि ठीक है ले, ठीक है सर. सुपरिटेंडेंट बोलता है अच्छा ठीक है भैया लिख के दो, सुनता नहीं है मेरे को. चलो ओके, बाय बाय.